Hello students, welcome to the Gen classes. Today we will learn about the div tag in CSS. Div tag defines the division or the section of the HTML document. Means any sort of content can put inside the div tag. Firstly, we will open the Notepad++ to do the coding. The div tag is used as a container for the HTML document, which is then styled with the CSS and manipulated with the JavaScript. Div tag is usually styled by using the class or the ID selector. Without describing more about the div tag, firstly, in simple language, we say that we prepare the sections by using the div tag. Okay. Firstly, firstly take the HTML tag. We will see it by using the coding. Starting HTML tag, opening HTML tag, and the closing HTML tag. Closing HTML tag. Now in the body tag and in the closing body tag, in the closing body tag I will write the computer. Okay, Control S. I will save this file and the D drive HTML final CSS tutorial file. This is my 5th tutorial on CSS. Tutorial file .html. All files and save. Okay. Control S. Okay. I will put this in the div tag. Div tag. Just save this and run it. Okay. We can see the control plus plus. We can see the computer on the frame, but div is not seen here. Okay. Now to show the div, firstly we will design the div. Okay. So in the head tag open, head tag close. In the head tag close, that means backslash. In the head tag I'll write style tag because this is a CSS, that's why we will take the style tag, and after CSS backslash styles style tag. Okay, in this style tag I will design the div. Okay, div is a selector in which I will set the width as a 400 semicolon, height as a 300, but pixel, to write the pixel is necessary. Just save this, and now I want the background color because we can see div section as in the color manner, colon light blue. I will take the orange. Okay, semicolon. Just save this file and now run it. Okay, we want to see the div tag. Okay, just refresh it. Yes, you can see the div tag. Okay, यहाँ पे div बन गया है. Okay, we can see the div, but I want the somewhat rectangular shape here and here. Okay, so I will set the radius, border radius. Okay,
border radius, border radius, border radius as a 10 pixel semicolon. Okay, just save this and run it. Yes, you can see the oval shape, right? Somewhat rectangle, somewhat curl is developed here. Okay, rounded corner. Okay, now we just have created the div tag. Okay, now I want the computer in the animated form, that means in the marquee form. Okay, I will write the computer, then I will write now C BR. Okay, now C++ BR type. Now C++ Java BR type. Oracle BR type. Then DBMS. Just save this file and run it. Now I want the font size. So in the div tag I want the font size now. That's why font size as 25 semicolon. Just save this file and run it. Okay, you can see the larger size of this. Now I want this in the bold section, so I will write this in the B tag, bold, because I don't want the everything in bold. That's why I will write the bold tag. Just save this and run it. Okay, bold tag is here. Now I want the in the motion C, C++, Java, Oracle, I want in the motion form, means up, down or right to left. That's why I will apply the marquee tag here. Marquee. Marquee tag, close. Marquee tag. Just save this file and run it. Okay, you can see it is moving from the left to right to left. Okay, but I want the motion as a up down. Okay, from up, from down to up. Okay, so I will give the direction equals to up, and width equals to 100%, and height equals to 100%. Control S. Just run it. You can see it is moving from the down to up. Okay, if you write D 50%, then it will come from this. Okay, just see this, width 50%, on height also 50%. Just save this file
and run it. It is starting from here. When we write the 100%, then it will start from here. Okay, it started from here and now it starts from here. Okay, so but I want the 100%, so I'll modify this 100%. Just save this and again run it. Okay, now I want the second tag. Okay, now I want the second division tag, so I will write the div and closing div. We already designed this with a orange background now, so let's refresh this. You can see another div is created, but I want this type of div in the साइड कॉर्नर. ओके, मीन्स मुझे क्या चाहिए, इसको एकदम ये जो DIV जो क्रिएट हुआ है ये हाइट पे चाहिए मुझे. ओके, सो जस्ट सी दिस. ओके, यू कैन सी द 2 DIV ना. आई वांट दिस DIV हियर, सो आई विल राइट. सो इसको क्या करूँगी अब मैं, इसको मैं टेबल के अंदर डालूँगी DIVs को. मीन्स इन द बॉडी सेक्शन आई विल क्रिएट वन टेबल open, so table close. So table close. अब टेबल है, टेबल के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, पहले टेबल के अंदर रो क्रिएट करेंगे. tr टैग एंड \tr. ओके, tr के अंदर टेबल डेटा, अगेन टेबल डेटा and again table data, again table data. Okay, just save this file and run it. Okay, table is created here, but I didn't include the div in the table now, so I want the border firstly. So table border equals to 1. Just save this file and run it. Should include the table. In the table data we should include the div tag. So just select this. First div is I had select and put here. Just put here. Okay, in the first div I set the div tag. Just save this file and run it. Okay, first table data is created. Now in the second, so I will create the div tag. This div just cut this, and in the second table data I will put this. Okay, div/div, enter, and this one is the second. Okay, this one is the second table data. Just save this and run it. Okay, आ गया. एक टेबल लिया, उसमें एक रो ली, रो में एक में टेबल डेटा में एक DIV डाला, दूसरे टेबल डेटा में दूसरा DIV डाला. कैसा, देखो सबसे पहले क्या किया, बॉडी सेक्शन में एक टेबल लिया, टेबल के अंदर एक रो लिया, रो के अंदर एक टेबल डेटा लिया, एक टेबल डेटा में एक DIV डाला, फिर दूसरा टेबल डेटा लिया, दूसरा टेबल डेटा के अंदर दूसरा DIV डाला. इसको ऊपर चाहिए, ठीक है, दूसरे टेबल डेटा के अंदर दूसरा DIV डाला. अब मुझे तीसरा DIV चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से ये TR एक ही रो चल रही है अपनी. ठीक है, अगेन मैं एक TD लूँगी, यानी टेबल डेटा लूँगी. टेबल डेटा ओपन हुआ तो टेबल डेटा क्लोज करूँगी. जैसे जैसे टैग आप ओपन करते हो वैसे वैसे क्लोज करते जाना. अब एक टेबल डेटा के अंदर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, एक DIV ले रही हूँ. मीन्स एक DIV ओपन हुआ और एक DIV क्या कर रही हूँ मैं,
क्लोज कर रही हूँ। जस्ट सेव दिस फाइल। ओके, सेव किया और इसको रन करो। हुआ तीसरा रो क्रिएट। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, DIV क्रिएट किया। अब मुझे अगर 4th DIV चाहिए पर दूसरी रो में चाहिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे लुक एंड फिल 3 ही रो का चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगेन एक रो क्रिएट करूँगी। सबसे पहले एक रो क्रिएट करूँगी लाइक TR, क्योंकि न्यू रो है ना ये, तो \TR। ओके, और ये \TR के अंदर एक टेबल डेटा और दूसरा टेबल डेटा। ठीक है, दूसरी रो के अंदर एक और अपन ने क्या किया, एक टेबल डेटा लिया और टेबल डेटा के अंदर दूसरा टेबल डेटा लिया। एक रो के अंदर फिर से TI, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये टेबल डेटा के अंदर एक DIV ले रही हूँ और दूसरा DIV ले रही हूँ। ठीक है, जस्ट सेव दिस एंड रन इट। आगे दूसरे रो के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये DIV के अंदर जैन क्लासेस लिख के आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेकंड नंबर का DIV है, फर्स्ट में तो मार्क क्यों लगा दिया, सेकंड नंबर का DIV के अंदर क्या लगा रही हूँ, जैन क्लासेस। 25 तो 25 साइज तो है ही इसकी। ठीक है, और इसको मुझे बोल्ड में चाहिए, सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बोल्ड लिख रही हूँ, \B। जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, DIV का जो सेक्शन है यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन कर दे रही हूँ। टेक्स्ट अलाइन क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जस्ट सेमीकोलन, जस्ट सेव दिस एंड रन इट। आ गया जैन क्लासेस बीच में। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, अगर आप लोगों को एक इनपुट बॉक्स अगर क्रिएट करना होगा तो आप लोग इनपुट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे, देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए और एक पासवर्ड वाला। यानी आपको मैंने, अगर आप लोग ने मेरी HTML की वीडियोस देखी होगी तो मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स क्रिएट करना भी बताया था। लाइक आप लोग को टूल्स क्रिएट, कंट्रोल्स क्रिएट करने बताए थे, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। वो सब कंट्रोल्स आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे थर्ड वाले DIV सेक्शन में, वही सेम रो में थर्ड वाले DIV सेक्शन में मुझे एक इनपुट बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, नेम के लिए इनपुट बॉक्स चाहिए मुझे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगी, मैं क्या लिखना है मुझे, इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप कैसा चाहिए मुझे, टेक्स्ट में चाहिए। अगर मैं पासवर्ड लिखती थी तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट करता था। ठीक है, जस्ट सेव दिस एंड रन इट। बहुत इजी आती है कोडिंग। आ गया नेम और टेक्स्ट बॉक्स, यू कैन इनपुट दी टेक्स्ट हियर। ओके, अब क्या चाहिए मुझे, ये जो फोर्थ वाला जो DIV सेक्शन है, मुझे यहाँ पे वीडियो चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, फोर्थ वाला जो DIV सेक्शन है मेरा, उसके अंदर मुझे वीडियो डालना है। और अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाला वीडियो देखा होगा, पहले वाले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे HTML की, जिसमें वीडियो आप डाल सकते हो, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप लोग HTML फाइल में वीडियो कैसे डालते हो। इसलिए आप लोग को मेरे पहले वाले सेशंस देखना ज़रूरी है, जो मैंने आप लोग के CSS में भी क्रिएट किए हैं। इसके पहले मेरे 4 सेशंस CSS के हो चुके हैं और 5 सेशंस मेरे HTML के ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। तो वो सब देखो आप लोग, तो आप लोग बहुत सारी डिज़ाइनिंग उसी से सीख जाओगे। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, इसमें मुझे वीडियो डालनी है, तो मैं वीडियो टैग ओपन करूँगी। वीडियो टैग ओपन किया मैंने, अब क्या करूँगी, वीडियो टैग क्लोज करना है मुझे। वीडियो टैग मैंने क्लोज किया, और वीडियो टैग ओपन क्लोज करने के बाद में मुझे क्या चाहिए, मेरे वाले फोल्डर के अंदर डकटेल्स नाम की एक MP4 फाइल है। ओके,
फिर डकटेल्स डॉट MP4 डबल कोट कंप्लीट। उसमें मुझे कंट्रोल्स चाहिए और मैक्सिमाइज मिनिमाइज कंट्रोल्स चाहिए, दैट्स वाई मैं कंट्रोल्स लिखूँगी इक्वल्स टू डबल कोट में कंट्रोल्स डबल कोट कंप्लीट किया। और उसके बाद में मुझे लूप चाहिए, यानी कितने बार ये वीडियो बचनी चाहिए, ठीक है। तो डबल कोट में लूप लिखेंगे, डबल कोट कंप्लीट, ओके। और जो वीडियो है उसकी विड्थ चाहिए अपन लोग को, तो विड्थ कितनी चाहिए मुझे। अगर मेरा DIV सेक्शन 400/300 का है तो मुझे जो वीडियो चाहिए वो 200 विड्थ की ही चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूँगी, ये 200 को डबल कोट में डालूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोज कर दूँगी, ठीक है। बिकॉज मेरा वीडियो टैग यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ओके। वीडियो SRC लिखना था मुझे इक्वल्स टू, बिकॉज वीडियो SRC यानी सोर्स फाइल कहाँ से आ रही है, डकटेल्स MP4 से आ रही है, ओके। जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। आ गई वीडियो, ठीक है। इसकी अगर आप लोग को साइज़ बढ़ानी है, लाइक अब मुझे वीडियो की साइज़ कितनी चाहिए, 400 चाहिए। जस्ट सेव दिस फाइल एंड रन इट। आ गई, यू कैन प्ले दिस वीडियो। ओके, दैट मीन्स आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइनिंग, यानी एक ही वेब पेज पे आप लोग क्या कर रहे हो, डिफरेंट टाइप की डिज़ाइनिंग कर रहे हो। लाइक यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट दे सकती हूँ, यहाँ पे मैं जैन क्लासेस का डाल सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मेरी ट्यूटोरियल 2 यानी अगर मुझे एक और DIV लेना है, ओके, सपोज मुझे एक और DIV सेक्शन लेना है, यानी ये इनपुट बॉक्स जो है ना, इनपुट बॉक्स की जगह पे मुझे अगर कंट्रोल्स नहीं चाहिए, मुझे अब मेरी पिक चाहिए, ओके, मेरी क्लास का पिक चाहिए। तो क्या करूँगी, यहाँ पे DIV टैग के अंदर इमेज टैग लूँगी, बिकॉज आई वांट टू अपलोड द इमेज, दैट्स वाई इमेज SRC, जैसे वीडियो SRC लिया उसी तरह इमेज SRC इक्वल्स टू मेरे ही फोल्डर के अंदर ट्यूटोरियल 2 नाम का कौन सी पिक इमेज है अपने पास देख लेना पहले। ओके, आगे अब मुझे ट्यूटोरियल 2 की इमेज डालनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, ट्यूटोरियल 2 डॉट दिस वन इज़ द PNG इमेज, सो PNG डबल कोट कंप्लीट। हाइट कितनी चाहिए मुझे, हाइट इक्वल्स टू 300, विड्थ इक्वल्स टू 400 एंड DIV सेक्शन क्या किया मैंने, क्लोज किया। जस्ट सेव दिस फाइल, just save this file and run it। आ गई, यानी आप लोग को जैसी डिज़ाइनिंग चाहिए वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, एक ही वेब पेज पे अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो बाय यूजिंग द DIV टैग, एंड उस पर आप लोग का जो वेब पेज है उसको डिज़ाइनर वे में आप लोग अपलोड कर सकते हो, बना सकते हो। लाइक वीडियोस डालो, वहाँ पे डिज़ाइनिंग करो, मार्क्यू टैग दे दो, पिक्स अपलोड कर दो, वीडियोस अपलोड कर दो, राइट है। आप लोग कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दी वीडियो DIV टैग। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।